Hello my dear friends, I am Professor Wayam Khan and this is the part 9 of unit number 1 of our subject Materials and Metallurgy. In today's video, we are going to study the polymorphism, the definition of polymorphism and what do you mean by ion allotropy, and then we'll see some of the crystal defects because we have to study in next video the part of strengthening mechanism. So today we'll just set the base for strengthening mechanism and we'll complete the part of our solidification process. Now in previous video we have studied various types of cooling curves and what is the effect of these cooling curves and what do you mean by Gibbs phase rule. In today's video we'll complete this solidification part, and before proceeding to that, I'll request you to subscribe my channel, like this video and share this video. Let us start. Now polymorphism, whenever a substance is solidified, it is either in a crystalline form or it is either in a amorphous form. Now many of the crystalline forms or many substances which are of a crystalline type, they exist in more than one stable crystalline form. Many substances, they exist in more than one stable crystalline form. Now the various forms have same composition but the crystal structure is different. एक कोई substance है जो crystalline form बनता है जिसका, या crystal उसका बनता है, ओके ये substance जो है ये कई अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है, मतलब इसके अलग अलग फॉर्म्स रहते हैं बट इसका जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगा. जैसे कि हमारा आयन है, हमारा कार्बन है, ओके ये कई स्टेबल फॉर्म्स में नज़र आते हैं. ये सभी जो मैंने तीनों जो बताया आपको मेटल्स, ये दे एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म. ओके दिस मे बी ड्यू टू द टेम्परेचर, मे बी ड्यू टू द प्रेशर or because of both, but they exist in more than one different crystalline form. Okay, but their composition is always same. जैसे कार्बन है, कार्बन के 4 अलग अलग फॉर्म्स है जैसे कि हमारा कोल है या सिंपल हम जिसको कोयला बोलते हैं. ओके ये कोयला जो है तो इट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कार्बन. ओके देन देर इज there is totally opposite to this coal, we have diamond, जो diamond है. ओके तो ये diamond भी जो है तो ये कार्बन का ही एक फॉर्म है, but their composition is same but their crystal structure is totally different. Okay, such a change in crystal structure with same composition is called as polymorphism. Okay, or you can say polymorphism. This is either due to the pressure or temperature or you can say both. Okay, अब it is observed most of the time in pure metals as well as in compounds, both organic and inorganic. The polymorphism of metals is often called as allotropy. जो metals के अंदर polymorphism दिखता है मतलब एक composition और अलग अलग crystal structure जो मेटल्स में नज़र आता है. इन केस ऑफ मेटल्स दिस पॉलीमॉर्फिज्म इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी. इसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी. एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज रिवर्सिबल विथ चेंज इन टेम्परेचर एट ए गिवन प्रेशर. मतलब जो मेटल्स हैं, मेटल्स के केस में अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कम करते हैं सो द क्रिस्टल फॉर्म इज रिवर्सिबल. उसका जो क्रिस्टल फॉर्म है वो रिवर्सिबल रहता है. और ऐसे मेटल्स या ऐसे एलिमेंट्स जो ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं जिसको हम बोल रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ये प्रॉपर्टी जो दिखाते हैं ऐसे मेटल्स को बोला जाता है पॉलीमॉर्फ्स. ओके जैसे कि आइसोमर्स रहता है. ओके हमारे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है आइसोमर्स. ओके सेम रहता है बट उसका एटॉमिक नंबर एंड समथिंग्स आर डिफरेंट देयर, सो उसको हम आइसोमर्स बोलते हैं. सेम रहते हैं लेकिन अलग अलग नंबर्स रहते हैं उनके एटॉमिक नंबर्स, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स. सिमिलर टू दैट द कंपोजिशन इज सेम but the crystal
form is different. Okay, say at a given temperature, at x1 temperature, an element is showing a body centered cubic structure. It is showing BCC structure at x1 temperature. This same element, if it exhibits at x2 temperature another crystalline form like face centered cubic FCC or say HCP, then such a kind of exhibition of various crystal forms is called as polymorphism, and the element which shows this polymorphism is called as polymorphs. Okay, now the substance which exhibits polymorphism is described either dimorphic और ट्राइमॉर्फिक डिपेंडिंग ऑन इट्स नंबर ऑफ फॉर्म्स. अगर एक आधा सब्सटेंस के दो अलग अलग फॉर्म्स अगर है तो उसको हम बोलेंगे डायमॉर्फिक. अगर उसके तीन अलग अलग फॉर्म्स हैं तो इसको बोलेंगे ट्राइमॉर्फिक. ओके, सो दिस इज अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म. दिस मे बी आस्क्ड फॉर 2 marks एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमको जब आगे स्टडी करना है, फेज डायग्राम स्टडी करना है, देन हमको स्टील एंड कास्ट आयरन स्टडी करना है, साथ ही साथ में हमको हीट ट्रीटमेंट स्टडी करना है, देन दिस पर्टिकुलर cooling curve for a pure iron will be very helpful, because iron exhibits a trimorphic polymorphism because iron has three various forms at different temperature. Okay, this is for a pure iron. अब एक प्योर आयन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है इट इज़ 1539 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ उस टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड फॉर्म में रहता है. A to B आपको दिख रहा है यहाँ पर, इट विल बी इन अ लिक्विड फॉर्म आयन. नाउ फ्रॉम पॉइंट B द फ्रीजिंग ऑफ दिस आयन स्टार्ट्स एंड द फ्रीजिंग प्रोसेस कंप्लीट्स एट पॉइंट C वेयर अ सॉलिड फॉर्म some okay, this gamma ion combines with carbon and it forms austenite in your steel. Okay, so this one is very important. This is called as gamma ion. This gamma ion is seen above 910 degree centigrade and below 1400 degree centigrade. Okay, now on further cooling, the amount of solid of iron increases and we see another form at some lower temperatures like 768 degree Celsius. We see another form of iron. That form is called as alpha iron, and this alpha iron is a non-magnetic type of iron. It does not attract magnets. Okay, ये magnetic नहीं है, ये this is a totally non-magnetic form alpha iron, and this is seen in between 768 to 910 degree Celsius. Okay, on further cooling from 768 to room temperature, the iron exhibits a different property, and that property is called as magnetic, or you can say the magnetism is seen in this alpha iron, and the form is same, it is alpha iron, but there is change in property. The alpha iron now shows magnetic properties. Okay, वो magnetic properties दिखाता है, it get attracted towards the magnet, and this is the general form of our iron जो हमको हमारे रूम टेम्परेचर पे नज़र आता है. आयन जो आप लोहा देखते हैं रूम टेम्परेचर पे वो जनरली अल्फ़ा आयन है, उसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो अल्फ़ा आयन है, और इसीलिए उसको मैग्नेट क्या होता है, स्टिक होता है. मैग्नेट आप चिपकाते हैं ना, बचपन में कई बार बच्चे वो खेलते थे,
मैग्नेट लगाने का काम करते थे आयन को. सो दैट इज द मैग्नेटिक आयन. ओके, नाउ दिस इज called as ion allotropy. Because we are studying polymorphism in metals, this particular mechanism is called as your allotropy. Okay, now let us go further. Let's see which are the different defects in crystal में कौन से defects हैं. तो जनरली 4 डिफेक्ट नज़र आते हैं. पॉइंट डिफेक्ट, इसको 0D या आप 0 डायमेंशनल डिफेक्ट भी बोलते हैं. देन देर इज लाइन डिफेक्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज 1 डायमेंशनल डिफेक्ट. देन देर इज प्लानर डिफेक्ट विच इज़ कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल डिफेक्ट, 2D डिफेक्ट. एंड देन देर इज वॉल्यूम डिफेक्ट और बल्क डिफेक्ट विच इज़ कॉल्ड एज 3D डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट जो है इट इज़ जनरली ऑकरिंग एट अ पॉइंट. एक आधा क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर हमको डिफेक्ट नज़र आ रहा है किसी एक पॉइंट पे, जैसे एक आधा एटम डिफेक्टिव है, ओके, या एटम का एक आधा साइट डिफेक्टिव है, कोई एटम्स के बीच का एक आधा स्पेस डिफेक्ट दिखा रहा है. सो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट. ओके, देन देर इज लाइन डिफेक्ट. लाइन डिफेक्ट के भी कुछ टाइप है, जैसे कि एज एंड स्क्रू डिसलोकेशन है. एज डिसलोकेशन में अगर मैं आपको बताऊँ तो समझ लो ये जो एटम्स है एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से बॉन्डेड है. ओके, बट क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट इन द क्रिस्टल देर इज एन एक्स्ट्रा रो ऑफ एटम्स. एक आधी एक्स्ट्रा रो क्या हो जाती है, इनका जो ओरिएंटेशन है, इनका जो ऑर्डर है, इनका जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के कहीं पे तो भी बीच में ये एक आधा एक्स्ट्रा रो क्या हो जाता है, एटम्स का आ जाता है. तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं, सच काइंड ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज लाइन डिफेक्ट और इट इज़ ऑल्सो एंड एज डिफेक्ट. ये एज डिफेक्ट है, एक आधी एक्स्ट्रा एज एटम्स की क्या हो रही है, इंसर्ट हो जा रही है. बिकॉज ऑफ दिस what is going to happen on your crystal and its properties, you can see that there is change in the order or there is change in the sequence of your atoms, and because of that there is void space created here, and this space can lead to some deformation. ये जो खाली स्पेस है, अगर मैं यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई कर दूँ तो ये जो पार्ट है इट विल गेट इजीली डिफॉर्म्ड, whereas this part will not get deformed because of presence of this extra row. But if you remove this, the order of this structure will get specific. It will not be like this V shape नहीं रहेगा. Okay, it will be completely rectangular or you can say a square shape. Okay, अब square shape होने की वजह से जो भी deformation होगा it will be equal and uniform. ओके, यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन होगा वही इसके इस लाइन पर, पूरी इस लाइन पर हमको डिफॉर्मेशन देखने मिलेगा. ओके, वाई वी आर एक्चुअली स्टडिंग दिस लाइन डिफेक्ट, वाई वी आर स्टडिंग दिस प्लेनर डिफेक्ट, बिकॉज इन द नेक्स्ट पार्ट दैट इज योर स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म, दिस काइंड ऑफ डिसलोकेशन, दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर यूज्ड टू स्ट्रेंथन द मटेरियल को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है. तो अगर मैं ये रो ऐड कर दूँ, so because of this row this part will get more strength, this part will get less strength. Okay, this can be used in some applications. Then there is screw dislocation. Screw dislocation को आप imagine कर सकते हैं, एक आधा क्रिस्टल है, एक आधा मेटल का क्रिस्टल है या एक आधा मेटल का बार है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर बार है, इसको आप क्या कर रहे हैं, नाइफ से कट कर रहे हैं. किस चीज़ से कट कर रहे हैं, नाइफ. ओके, यू आर कटिंग इट विथ अ नाइफ. आप उसको स्लाइस करना चाह रहे हैं, यू आर पार्टिंग इट, उसको आप आधे हिस्से में कट करना चाह रहे हैं. ओके, तो जब वो आप कट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट मैकेनिज्म द क्रिस्टल गेट्स स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स. वो 2 अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज स्क्रू डिसलोकेशन. जैसे आप अगर एक आधा स्टिकी चॉकलेट जब आप तोड़ना चाहते हैं तो वो इजीली टूटता है क्या, नहीं. ओके, वो क्या होता है, स्टिकी चिपक के रहता है, एक दूसरे को चिपक के रहते हैं दोनों भी पार्ट्स. सो उसी तरीके से ये दोनों भी पार्ट्स जो है मेटल की, वो एक दूसरे को चिपके हुए रहते हैं, दे आर स्टिक्ड टुगेदर. बट उसके अंदर क्या हो गया है, उनका जो लाइन है एटम्स का, वो क्या हो गया है, उसकी जगह से मिसप्लेस हो गया है. ओके, सो सच काइंड ऑफ डिसलोकेशन इज कॉल्ड एज स्क्रू डिसलोकेशन.
देन दिस इज़ द 3D डायग्राम, ये 3D डायग्राम है। अगर सिंबल में रिवर्स टी दिखाया है, सो दिस रिवर्स टी रिप्रेजेंट्स योर डिसलोकेशन, एंड सच ए काइंड ऑफ डिसलोकेशन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डिसलोकेशन। वही अगर सीधा टी दिखाया गया है तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव डिसलोकेशन। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसका 3D में कैसा वो नीचे का जो पार्ट है वो अंदर स्क्वीज हो गया है और ऊपर का पार्ट बाहर आ गया है। एंड दिस इज़ योर स्क्रू डिसलोकेशन वेयर द हाफ ऑफ द पार्ट इज मूव्ड अपवर्ड एंड द रिमेनिंग पार्ट इज एज इट इज़ वो नीचे है। ओके, देन देर इज़ प्लेनर डिफेक्ट। प्लेनर डिफेक्ट्स है, यही हमको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर जो पहला डिफेक्ट है दैट इज़ ग्रेन बाउंड्रीज। ये ग्रेन बाउंड्री का इस्तेमाल करके हम कैसे मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे ये भी हमको स्टडी करना है। देखो, कोई भी एटम जो है इसके एटम्स के बीच में उनकी बाउंड्रीज रहती है। ओके, सो दिस इज़ अ क्रिस्टल नंबर 1, इसका ये एटम्स है, और ये क्रिस्टल नंबर 2 है, उसके ये एटम्स है। अब इनके बीच में कुछ इम्प्योरिटी एटम्स अगर प्रेजेंट है तो ऐसे इम्प्योरिटी एटम्स को बोला जाता है ग्रेन बाउंड्री। दे आर क्रिएटिंग सम बाउंड्री इन बिटवीन क्रिस्टल 1 एंड क्रिस्टल 2, जैसे यहाँ पर है। ओके, सी दिस वन इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल 1, सपोज दिस इज अ क्रिस्टल 1, दिस इज क्रिस्टल 2, बट देर इज अ लाइन बिटवीन देम। इनके बीच में क्या है, एक इम्प्योरिटी एटम्स की लाइन क्रिएटेड है, एंड दिस इज नॉट ओनली लाइन, दिस इज अ कंप्लीट प्लेन। ये पूरा की पूरा क्या रहेगा, एक प्लेन रहेगा। ओके, तो सच ए काइंड ऑफ बाउंड्रीज आर कॉल्ड एज ग्रेन बाउंड्रीज, एंड दिस इज ट्रीटेड एज ए डिफेक्ट। इसको हम डिफेक्ट बोलते हैं क्योंकि इसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज हमको मैच करनी है वो मैच नहीं हो पाती। ओके, बट हाउ दिस विल बी यूज्ड एज ए strengthening mechanism that we will study in next part, but just remember that if impurity atoms are present between two crystal atoms, then this kind of defect is called as grain boundary. Then this is your twin boundary, or this is also called as twin boundary defect. तो इसके अंदर क्या होता है कि ये ओरिजिनली ये जो प्लेन था दिस वॉज अ रेक्टेंगुलर प्लेन। ये जो एटम्स का प्लेन है ये रेक्टेंगुलर था, बट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस मिडल पार्ट, ये बीच का जो पार्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव हो गया। इसके लिए अगर इस जो ये जो मूव्ड पार्ट है या जो ये स्लिप हुआ है यहाँ पर इतना पार्ट प्लेन का, तो इसके वजह से क्या हो गया है, जो क्रिस्टल का आधा हिस्सा है वो मिरर इमेज जैसा है दूसरे आधे हिस्से से। सो यू कैन सी दैट दिस इज अ पार्ट विच इज सिमिलर टू दिस पार्ट। ओके, एंड दिस इज ड्यू टू दिस ट्विनिंग प्लेन। ये जो ट्विन प्लेन है ना बीच का, जो मिरर के जैसा काम कर रहा है, इसके वजह से क्या होता है, ये ट्विन डिफेक्ट तैयार होता है। मतलब प्लेन के एक हिस्से में एटम्स जैसे है वैसे ही एटम्स का अरेंजमेंट दूसरे हिस्से में भी नज़र हमको आता है। दिस इज कॉल्ड एज ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट। देन देर इज टिल्ट बाउंड्री डिफेक्ट। जैसे कि हमने पहला वाला डिफेक्ट देखा था एज डिसलोकेशन, इसके अंदर ये एटम जो है एक्स्ट्रा रो जो है इसके अंदर ऐड हो गई है, वैसे ही इस टिल्ट बाउंड्री में जो बीच का प्लेन है ये पूरा की पूरा प्लेन गायब हो जाता है, और इसकी वजह से एक आधा वी टाइप शेप यहाँ पर क्रिएट होता है जो आपको थोड़ा सा टिल्टेड नज़र आता है। अब ये जितने भी ब्लॉक्स है ये पूरे ब्लॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटम्स को, और ये बीच के जितने भी जगह है ये दिस इज बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ द प्लेन फ्रॉम द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से ये पूरा की पूरा प्लेन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, और इस वजह से जो आपका रिमेनिंग क्रिस्टल का एटम्स है दे आर टिल्टेड इन सम एंगल। जो वर्टिकल है उससे वो थोड़ा सा एंगल क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। वी कैन कैलकुलेट द एंगल, हम उसको थीटा बताते हैं, वो एंगल भी हम निकाल सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस राइट नाउ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट your crystal defects and polymorphism. In next video we'll study about the